یہ چہل پہل غزنی شہر کے بازاروں کی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے غزنی شہر اپنی تجارت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اسی شہر غزنی کے ایک چوراہے پر ہر جمعہ کے دن ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا۔ اس روز شہر کا ایک امیر شخص اپنے ہاتھ میں ایک کوڑا لیے صدائیں بلند کرتا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کوڑے مارے اور میری کمر پر زخم لگائے، میں بدلے میں اسے انعام دوں گا۔ وہ مالدار شخص جابر بن خلیل تھا، جو اونچی آواز میں صدائیں لگاتا اور لوگوں کی منتیں کرتا کہ تم لوگوں کو خدا کا واسطہ اس گناہگار کی کمر پر کوڑے برساؤ اور بدلے میں سونے کے سکے لے لو۔ غزنی کے لوگ بڑے ہی تجسس سے جابر کو دیکھتے، گو کہ یہ لوگ بڑے ہی خدا ترس تھے، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ چنانچہ جابر کو بھی کوئی ایسا شخص مل ہی جاتا جو اس کی کمر کو زخمی کرتا اور بدلے میں اس کی دولت لے لیتا۔ غزنی کا سلطان بڑا ہی نیک دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ وہ بازاروں میں بھیس بدل کر جاتا اور رعایا کے حالات معلوم کرتا۔ ایک روز اتفاق سے سلطان بھیس بدل کر بازار میں گشت کر رہا تھا کہ اسے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا نظر آیا۔ جب اس نے قریب جا کر دیکھا تو سخت حیران ہوا کہ ایک آدمی پر بری طرح کوڑوں کی برسات کی جا رہی ہے اور اس کی کمر سے خون رس رہا ہے۔ سلطان نے اپنے مصاحب سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور اسے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ مصاحب بولا، جناب، نہ تو اس آدمی کو کسی جرم پر کوئی سزا سنائی گئی ہے اور نہ ہی مارنے والا کوئی جلاد ہے۔ اس آدمی کا نام جابر بن خلیل ہے اور یہ ہر جمعہ کے دن غزنی کے بازاروں میں صرف اس لیے آتا ہے کہ کوئی اس کی کمر پر کوڑے برسائے اور تب تک نہ رکے جب تک اس کی کمر سے خون نہ رسنے لگے۔ حضور، یہ آدمی نہ صرف کوڑے کھاتا ہے بلکہ مارنے والے کو اچھی خاصی رقم بھی دیتا ہے۔ سلطان نے مصاحب کی بات سنی تو بولا، اگر ایسی بات ہے تو آج اس آدمی کو یہاں سے جانے مت دینا، اسے میرے دربار میں حاضر کرنا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ شخص ہے کون اور یہ خود پر اتنا ظلم کیوں کرواتا ہے۔ اگلے روز جابر کو سلطان کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جابر اپنی زخمی کمر کے ساتھ سلطان کے حضور پہنچا۔ سلطان نے جابر سے کہا کہ میں نے بازار میں اپنی آنکھوں سے تمہیں کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم اپنی کمر پر کوڑے کیوں کھاتے ہو اور اس کے عوض لوگوں کو رقم کیوں دیتے ہو؟ کہیں تم کوئی جادوگر تو نہیں؟ جابر بولا، حضور، میں آپ کے دربار میں زیادہ دیر کھڑا رہنے کا مستحق نہیں ہوں۔ دنیا میں شاید ہی مجھ جیسا کوئی بدنصیب لالچی اور ظالم ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس بدقسمت شخص کی کہانی سن کر اپنا وقت برباد نہ کرے۔ مگر سلطان کے اصرار کرنے پر جابر نے اپنی کہانی یوں بیان کرنا شروع کی، حضور، غزنی سے کوسوں دور ایک بستی ہے۔ کئی بار سال بھر بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان دنوں اس بستی پر غربت نے چاروں طرف ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اس بستی میں ہر شخص غریب اور مفلس تھا، مگر صرف ایک شخص ایسا تھا جو نہایت امیر تھا۔ دولت کے جیسے انبار تھے اور یوں لگتا تھا کہ اس شخص کو خدا نے اپنے خزانے دے کر چھوٹ دے رکھی ہے۔ حضور، وہ شخص انتہائی ظالم اور لالچی تھا، کبھی بھی کسی غریب کی دولت مارنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ جب بھی کسی غریب پر کوئی آفت آتی تو اس شخص کو دلی سکون ملتا۔ سلطان کو تجسس ہوا اور پوچھنے لگا کہ تمہارے اس کوڑے کھانے سے اس شخص کا کیا تعلق ہے؟ جابر بولا، جناب، بڑا ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ وہی شخص ابھی آپ کے سامنے کھڑا اپنی کہانی بیان کر رہا ہے۔ میری ملکیت میں ایک بڑا پہاڑ تھا جس سے قیمتی پتھر نکلتا تھا۔ وہ پتھر خوبصورت عمارتیں بنانے کے کام آتا تھا۔ غزنی میں شاید ہی کوئی محل ایسا ہوگا کہ جس میں اس پہاڑ کا پتھر استعمال نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے اس دربار کے بنانے میں بھی اسی پہاڑ کے پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جو اب بھی میری ملکیت میں ہے۔ میری بستی کے لگ بھگ تمام لوگ میرے پاس مزدوری کیا کرتے تھے۔ بستی کے لوگ مجبوراً اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے مجھ جیسے ظالم شخص کو برداشت کرتے۔ میں نے مزدوروں کو اجرت دیتے وقت ایک خاص قسم کی شرط رکھی ہوئی تھی۔ میں مزدوروں کے دن بھر کی محنت کا معاوضہ دیتے وقت ان کی کمر کو دیکھتا تھا
और उसी सूरत में इस मजदूर को उजरत देता कि मजदूर की कमर पत्थर उठाने से जख्मी हो और इसमें से खून निकल रहा हो। शाम को गरीब मजदूर एक कतार में खड़े हो जाते और हर एक अपनी कमर से कपड़ा हटा हटा कर दिखाता। जिस जिस की कमर से खून और जख्मों की निशानदही हो जाती उसे उस दिन की उजरत मिल जाती थी। और उस गरीब की कमर का दर्द ये सोचकर खत्म हो जाता कि आज इसके घर वालों को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। मेरी लालच ने मेरे दिमाग पर ऐसा गलबा पाया कि मैं एक जालिम दरिंदा बन गया। मेरे पास दौलत की कोई कमी तो थी नहीं और उस पर खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाज दिया। सुना है जब इंसान की अपनी औलाद हो जाए तो इसमें रहमदिली का जज्बा भी आ जाता है। लेकिन बेटे की पैदाइश ने भी मेरी आंखों पर बंधी हुई जुल्म की पट्टी नहीं खोली। मेरा बेटा अभी कम उम्र ही था, मगर मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि वो मेरी जालमाना कार्रवाइयों को पसंद नहीं करता। इसी वजह से मैं अपने बेटे की आंखों में झांकने की सलाहियत नहीं रखता था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को पढ़ाई के बहाने शहर भेज दूंगा ताकि मुझे अपने बेटे का सामना न करना पड़े। चुनाचे मेरा बेटा शहर के एक मदरसे में पढ़ने चला गया और मुझे अपने जालिमाना काम में कई साल बीत गए। कई बार ऐसा होता कि पहाड़ी पर मजदूरी करते वक्त कोई ना कोई मजदूर शदीद जख्मी हो जाता। सुल्तान और इसके दरबारी बड़े गौर और तजस्सुस के साथ जाबिर की दास्तान सुनते चले जा रहे थे, लेकिन जाबिर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और आंसू इसकी आंखों से जारी थे। फिर वो कहने लगा, जनाब, मेरे मजदूरों में से एक मजदूर बहुत कमजोर जिस्म का मालिक था। वो मजदूर 2 बेटियों और एक बीवी की कफालत करता था, मगर फिर भी सबसे ज्यादा वही मजदूर मेरे जुल्म का शिकार बनता था। अपनी कमजोरी के बायस वो अपनी कमर पर एक कपड़ा रख कर पत्थर उठाता और शाम के वक्त वो मुझे दिखाता कि सबसे ज्यादा उसी ने काम किया है। लेकिन मैं अपनी शर्त पर कायम रहता और उसे जख्मी कमर दिखाने का मुतालबा करता। जब वो अपने जख्म ना दिखा पाता तो मैं उसे खाली हाथ लौटा देता। हुजूर, एक बार तो ऐसा हुआ कि इस गरीब ने 3 दिन मुसलसल काम किया, मगर मुसलसल तीनों दिन इसकी कमर जख्मी ना हुई। मैं दिल ही दिल में खुश था कि बिना उजरत अदा किए मेरा काम होता जा रहा है। मैंने उसे 3 दिन लगातार उजरत न दी और उसे खाली हाथ ही लौटाता रहा। हर बार वो गरीब मेरे सामने आंसू बहा बहा कर इल्तिजा करता कि अगर उजरत ना सही तो खुदारा कुछ खाने को ही दे दो ताकि घर वालों का पेट तो भर सके। हुजूर, मुझे यकीन है कि अगर वो गरीब शख्स किसी पत्थर के सामने भी अपनी इल्तिजा रखता तो वो भी पाश पाश हो जाता, मगर मुझ जालिम पर इसका कोई असर ना हुआ। इसके बीवी बच्चे 3 दिन से फाकों पर थे। वो गरीब घर जाता तो उसकी बीवी इससे तकाजा करती कि कुछ खाने के लिए लाए कि नहीं, और वो यही जवाब देता कि आज भी वो मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हुजूर, चौथे दिन वो आदमी जब शाम को उजरत लेने आया तो मुझे ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि आज इसकी कमर जख्मी थी। मैं तो ये सोच रहा था कि आज भी उसे उजरत नहीं देनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने गुस्सीली निगाहों से देखते हुए उसे उजरत दी। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और घर को रवाना हो गया, लेकिन फाकों की वजह से वो इस कदर कमजोर हो गया कि घर तक न पहुंच सका और रास्ते में ही उसे मौत ने आन लिया। अगले रोज मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होंठ खुश्क थे। बस यूं समझ लें कि इसके चेहरे से रौनक यूं गायब थी जैसे सहरा से पानी। इसके पहलू में इसकी 2 नन्ही बेटियां खड़ी थी जो अपनी आंखों में एक अनजाना सा खौफ लिए हुए थी। दरअसल ये उसी गरीब की बेवा थी कि जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। इस बेवा ने मुझे हाथ उठाकर बद्दुआएं देते हुए कहा कि तुमने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई। उस दिन से मैंने शदीद जहनी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे जहन में ये बात गर्दिश करने लगी कि ये औरत अब सीधी काजी के पास जाकर मेरी शिकायत करेगी, और अगर काजी से मेरी शिकायत हो जाती तो यकीनन मुझे एक कातिल की ही सजा मिलती। कुछ ही दिनों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अब जबकि मैं खुद भी खौफजदा था तो मैंने अपने एक खादिम को भेजा। खादिम वापस आया और कहने लगा कि दरवाजे पर एक कासिद आया है और इसके हाथ में एक खत मौजूद है। मैं समझा कि जरूर इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत कर दी है।
और ये कासिद भी काजी ही ने भेजा होगा। लिहाजा मैंने अपने खादिम से कहा कि जाओ और उस कासिद को कह दो कि मालिक अभी घर पर मौजूद नहीं है। इस तरह वो कासिद वापस लौट गया। अब तो मेरा खौफ के मारे बुरा हाल होने लगा। मेरे दिन का चैन और रात की नींद भी हराम होने लगी। अगर थोड़ी देर आंख लग भी जाती तो इस मजदूर की बेवा मेरे ख्वाब में आ जाती और कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद इसके कहकहों से मेरी आंख खुल जाती। दूसरी तरफ वो कासिद रोजाना मेरे दरवाजे पर आता और मैं हर बार उसे वापस भेजता रहा, क्योंकि मैं काजी के सामने पेश नहीं होना चाहता था और यही सोचता था कि शायद टाल मटोल से काम चल जाए। कहा जाता है कि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। खुदा ने जो मुझे ढील दे रखी थी, शायद इसकी मुद्दत अब खत्म हो चुकी थी और मेरी पकड़ का वक्त आन पहुंचा था। उस रोज मुझ पर गम का एक ऐसा पहाड़ टूटा कि जिसे बर्दाश्त करने की मुझ में सकत न थी। मेरे बेइंतहा जुल्म का बदला आज मुझे मिलने वाला था। हुजूर, उस रोज एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फिर यही समझा कि काजी का कासिद आया होगा, मगर मेरे खादिम ने आकर बताया कि कोई आदमी आया है जो अपने साथ एक घोड़ा गाड़ी लाया है। मैंने झट से दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और एक घोड़ा गाड़ी भी अपने साथ लाया है। इस घोड़ा गाड़ी पर कफन में लिपटी किसी की लाश मौजूद थी, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। मैंने कपड़ा हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। जनाब, वो खून में लथपथ लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने ही बेटे की थी। बेटे की लाश अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे हवास जाते रहे। मैं अपने बेटे की लाश से लिपटकर जी भर कर रोया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने इस घोड़ा गाड़ी लाने वाले आदमी से पूछा कि मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई। उस आदमी ने बताया कि इसे किसी बात का इल्म नहीं है, इसका काम तो लाश को मेरे पास पहुंचाना था। मैं समझा कि शायद उस बेवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को कत्ल कर दिया होगा, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि वो औरत तो खुद ही बड़ी लागर थी। वो ज्यादा से ज्यादा काजी से शिकायत ही तो कर सकती थी। बहरहाल बोझल दिल से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को ऐसा वक्त न दिखाए कि बाप अपनी औलाद को दफनाए। अब मदरसा ही एक ऐसी जगह था जहां से मुझे अपने बेटे की मौत की वजह मालूम हो सकती थी। मेरी बस्ती से मदरसा 2 दिन की मुसाफिर पर था। अगले रोज मैं सफर पर निकलने के लिए दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक वही कासिद वहां नमूदार हो गया। मैंने सोचा कि कब तक हालात से भागूंगा, अब तो मैंने अपना बेटा भी खो दिया। लिहाजा मैंने कासिद से कहा कि लाओ वो खत मुझे दो। इसने हाथ आगे बढ़ाया और खत मेरे हवाले कर दिया। अपनी दास्तान सुनाते सुनाते जाबिर एक बार फिर रुक गया और हिचकियां ले लेकर रोने लगा। सुल्तान ने इसका कंधा थपथपाया तो बमुश्किल जाबिर ने अपनी हिचकियों पर काबू पाया और दोबारा अपनी दास्तान बयान करने लगा। जाबिर बोला, हुजूर, मैं अभी भी यही समझ रहा था कि इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत की होगी और ये खत काजी की तरफ से बुलावे का एक पैगाम है। मगर जब मैंने खत खोलकर पढ़ना शुरू किया तो मुझ पर सदमे की वो हालत तारी हुई जो मैं बयान नहीं कर सकता। उस खत में लिखा था, अब्बा जान, मैं चंद दिनों से बहुत बीमार हूँ। मुझे एक अजीब सी बीमारी ने आन घेरा है। सुबह के वक्त मेरी कमर पर खून से भरे फोड़े नमूदार होते हैं और शाम को उनके फटने पर कमर से खून रिसता है। अब्बा जान, मैं शदीद तकलीफ में हूँ। मैं आपके पास आकर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा करें कि पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खत जल्द अज जल्द मिल जाएगा और मेरा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। हुजूर, अब आपको मालूम हो गया होगा कि दरअसल वो खत मेरे बेटे ने भेजा था। वो कासिद मेरे अपने बेटे का पैगाम लेकर 10 दिनों तक मेरे दरवाजे पर आता रहा और मैं गाफिल यही समझता रहा कि इस औरत ने मेरी काजी से शिकायत की है। मगर मुझे यकीन है कि उस मजलूम बेवा ने दरअसल काजी से नहीं बल्कि खुदा से शिकायत की थी, जो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं गजनी के काजी से तो भाग सकता था, मगर उस खुदा की पकड़ से कैसे भागता जो पूरी कायनात का मालिक है। अब मुझे अपने गुनाह एक एक करके याद आने लगे। इस गरीब खानदान की आह ने मेरा वो हाल किया
कि मुझे अपने बेटे का भेजा हुआ खत भी वक्त पर पढ़ना नसीब ना हो सका। हुजूर, वो दिन है और आज का दिन। मैं गजनी की गलियों में इबरत बनकर फिरता हूँ। मैं लालच और जुल्म के गड्ढे में गिरा हुआ ऐसा हैवान बन चुका था कि दूसरों की जख्मी कमर देखकर मुझे राहत और चैन नसीब होता था। गरीब और कमजोरों की जिस्म से खून निकलता देखकर खुश होने वाले मुझ जैसे जालिम की आज ये हालत है कि जब तक मैं अपनी कमर से खून निकलता ना देख लूं, मुझे चैन नसीब नहीं होता। हुजूर, यहाँ मेरी दास्तान खत्म होती है। अब आप ही बताएं कि क्या मैं इस बात का हकदार नहीं हूं कि सबके सामने बीच चौराहे पर मुझे रोजाना कोड़े मार मार कर जख्मी किया जाए। जाबिर की दास्तान मुकम्मल होने पर दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी का चेहरा आंसुओं से तर था तो किसी का गुस्से से लाल। फिर सुल्तान ने जाबिर को मुखातिब करते हुए कहा, जाबिर, तुम्हारी दास्तान इबरत अंगेज है। तुमने जो जुल्म किए इसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। आखिरत का मामला तुम्हारा और खुदा का है, लिहाजा तुम खुद पर ऐसा जुल्म करके मजीद गुनाह समेट रहे हो, क्योंकि खुदा हरगिज नहीं चाहता कि इंसान अपनी ही जान पर जुल्म करे। अब तुम्हें मेरा मशवरा है कि अपनी राहत और सुकून की खातिर वही दौलत जिसकी लालच ने तुम्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया, उसी दौलत को गरीबों की भलाई पर खर्च करो। बेशक खुदा बड़ा मेहरबान है और तौबा कबूल करने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।